Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and we have already started the last unit of macroeconomics class 12th, okay? And in that we have started the chapter aggregate demand and related concept, okay? तो हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया था consumption, okay? So consumption curve कैसे बनेगी? That means AD curve, okay, and the components of AD is C plus I because we are considering taking only two sectors in consideration, okay, that is the consumption and investment, right? So आपको बताया दिया था we are assuming that here the you can say the investment is autonomous. There will be no change in investment. Autonomous means constant. मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ. Those who have joined today this video, please just give a look on the previous video because आपके concept उसी से clear होंगे, okay? Then consumption is what? That is consumption if there is no income, zero level of income, but still there will be a consumption because of that. This C और ऊपर जो dash लगा है that is C bar, okay? इसको कहते हैं autonomous consumption, okay? So this level is autonomous consumption and consumption and AD is upward sloping curve. ओके ये आपको बस एक फ्री हैंड से बना देंगे ये आप. एडी वी हैव टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड इनकम वी हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस. इन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट दैट इज आई विल ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस and these are two lines, that is AD and AC, they are parallel to each other, okay, or you can say AD is parallel to consumption curve, okay. And what else we can just add here, that is they are upward sloping, okay. So I've given so much of explanation in the previous video, you can go through that, but it was just simply a recap here. Now what we're going to start here, that is the aggregate supply, okay. Now here aggregate supply means what? Supply means from the point of view the producers जितना भी प्रोडक्शन करेंगे इकोनॉमी में, जितना भी आपके कंट्री में इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, in return they will get the income, okay. So aggregate supply means the total supply, okay. Aggregate to the money value of final goods, we are taking only final goods into consideration, and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period, okay. So in a given time period, whatever the supply, it is all the producers in the economy ready to sell. So that is in return they are going to get the income. It must be noted that AS refers only to the planned, okay, planned production or desired output during a given time period. It does not refer to actual output. ये planning पे ही चलता है, okay. So आपका aggregate demand भी था वो planned था, okay. Then aggregate supply is equals to national income. Now how we can say that aggregate supply जो है वो total है आपका national income का. With the help of this, what it is all first of all क्या करेंगे, production of goods करेंगे, then ये payment करेगा. I'm just going to write here like this. With the help of that you can easily understand it, okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया गया, बिकॉज दीज आर द सप्लायर्स और द प्रोड्यूसर्स. तो इन्होंने क्या किया, दैट इज दे विल मेक द पेमेंट टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पेमेंट्स factors of production, this should be F. First we do the production of goods, then the payments to factors of production, okay. यही तो होता है ना सिनेरियो सप्लायर्स का. जैसे कि आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे दिया वेजेस, रेंट, interest and capital, okay. Now what, and this is profit, okay. Now what else, ये सब क्या हो गया आपकी आ गई national income. So in this way we can say aggregate supply, okay. The aggregate supply is this and national income, and आपका national income आएगा, okay. So with the help of this we can just make it clear here, that is when the production of goods take place, then the payments of factors of production will be done in the form of wages, rent, interest and profit, and then it जो उनके पास income जाएगी, that is going to be a national income. So in this way we can say aggregate supply is equals to national income, okay. एक छोटा सा और तरीका है मैं आपको बताऊंगी with the help of the table also, okay. When we are going to just do the table, then I'll just let you know, okay. So I hope it's clear now. So when A is expressed in its physical terms, it refers to the total output of goods and services in an economy. We know that the value of total output is distributed to factors of production. I have explained you with the help of the flow chart. Okay, वही चीज़ें कि यहाँ बता रहे हैं. That is the total value or total output is distributed to factors of production.
land, labor, capital, entrepreneur in the form of rent, wages, interest, and profit. The sum total of these factor incomes means they are getting in return whatever they are producing, they are getting the income in return, that is rent, wages, interest, and profit at domestic and national level is termed as national income. The same thing I've told you or explained you in the help of diagram. फ्लो चार्ट के थ्रू बताया वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, राइट? सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई एस एंड नेशनल इनकम दैट इज वाई. कहीं पे भी नेशनल इनकम एन आई करके नहीं लिखना है, ओनली वाई. ओके, आर वन एंड द सेम थिंग. देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई सिमिलरली जैसे आपका था एग्रीगेट डिमांड का कॉम्पोनेंट्स कहते हैं सी प्लस आई. ओके, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स. या तो जितना भी हमारे पास इनकम आता है या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं और जो उसमें से बच जाता है वी सेव डैट. ओके, तो इसके कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे, ए एस के या national income, y national income is equals to as is equals to c plus s. Okay, remember this. National income that is y is equals to consumption plus saving. जो भी हम कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे, जो भी हमारे पास इनकम आती है यही तो आप करते हो. तो सिमिलरली वही सब चीज़ें यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस. अब डायग्रामेटिकली हम इसका कैसे बनाएंगे, देखिए AS and AD both are upward sloping curve. ओके, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दोनों रहेंगी. द डिफरेंस इज दिस, AD आपका कुछ यहाँ से शुरू हुआ था बिकॉज आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन यहाँ पे आ जाता है, राइट? AS क्या है आपका, सिंपल आपका एक जो सप्लाई कर्व बनाते थे एग्जैक्टली वैसे ही आप इसको बना दोगे, राइट? फाइन, अब इसको हम और डिटेल में पूछ लेते हैं. सप्लाई कर्व मत लिख के आना, बट वाई और एएस या नेशनल इनकम और एएस. ओके, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड नेशनल इनकम कोइंसाइड with each other. The nature of national income curve or AS curve can be made clear with the help of this. Okay, now example. देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने इनकम ली. इनकम इज व्हाट, जीरो से स्टार्ट करी. कभी कभी होता है हमारी इनकम कुछ भी नहीं होती बट स्टिल वी मेक द कंजम्पशन. ओके, वी कंज्यूम समथिंग. बेसिक नीड्स के लिए हमें कंजम्पशन करना पड़ता है, राइट? सो वही टेबल सेम हम ले रहे हैं. 0 100 यहाँ पे डिफरेंसेस हमने 10 100 कर लिया. यहाँ पे 80 से इसको इंक्रीज कर दिया कंजम्पशन को, राइट? सो हियर व्हाट वी कैन सी, सेविंग कैसे होगी. सेविंग जब हम क्या करेंगे, आपकी जो सेविंग होगा इनकम में से जब हम कंजम्पशन हटा देंगे तो जो बचेगा दैट इज द सेविंग. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 600 मेरी इनकम थी, इसमें से मैंने कितना खर्च किया, 520 कंजम्पशन किया. सो 80 was left with the saving. Then 500 minus 440 you will get 60. 60 is the saving. 400 360 इसमें से माइनस किया, then we will get 40. Then 300 and then इसमें कंजम्पशन मैंने कितना किया, 280 का किया. So 20 is left for the saving. But here 200 मेरी इनकम थी एंड आई कंज्यूम्ड टोटल 200. तो सेविंग क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई. एंड दिस पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे भी बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो बिफोर हैंड. जहाँ पे आपकी इनकम एंड कंजम्पशन, ओके, जहाँ पे इनकम आपकी कंजम्पशन जो है एक हो जाती है, मीन्स जो है इनकम एंड कंजम्पशन इज इक्वलेंट, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, ना यहाँ पे क्या आपका इनकम जो है 100 था बट यू कंज्यूम्ड 120 मोर, तो यहाँ पे डिस सेविंग आ रहा है, राइट? यहाँ पे आपकी, अभी मैं आपको इसको और भी डिटेल में बताती हूँ बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ टेबल आप इसको पहले समझ लेंगे तो अभी डायग्रामेटिकली जब बताएंगे तो आराम से उसको और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा ना. सपोज हमारी इनकम क्या है, जीरो लेवल है बट कंजम्पशन इज व्हाट 40. वे कंज्यूम तब भी हम कर रहे हैं अपनी पास्ट रिसोर्स, जो हमने आपको बताया था रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ कंजम्पशन क्या हो सकते हैं, बोरोइंग हो सकती हैं या आपकी पास्ट सेविंग हो सकती हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आ गया सेविंग. ओके, नाउ एएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी ऐड सी प्लस एस. तो यहाँ पे 40 माइनस 40 यू विल गेट 0 एएस. 120 माइनस 20 100. 200 minus 0 you will get 200. Then 280 plus 20 300. And then 360 plus 40 400 and so on. Okay, so income is represented on the x axis. x axis is here, वैसे ही आप इनकम को रिप्रेजेंट करोगे और यहाँ पे कंजम्पशन एंड सेविंग को रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट, ऑन द y axis, जिसको ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. नाउ a 45-degree line which represent the aggregate supply has been drawn from the origin. Now AS का क्या होगा, ये आपका 45 डिग्री लाइन पे स्टार्ट होता है बिकॉज एज द इनकम एंड यू कैन से द नेशनल इनकम एंड द सेविंग, ओके, AS इज सेम जो मैंने आपको शुरू में बताया था, दैट इज इनकम क्या है इज इक्वल्स टू AS. ओके,
सो हाउ यू कैन से द एग्रीगेट सेविंग इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ये कह सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो जो आपका यहाँ पे फिगर लिखा है, अमाउंट लिखा है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, सेम पैटर्न सेम फिगर आपका कहाँ पे लिखा है, एग्रीगेट सप्लाई में। 0, 100, 100, 100, 200, 200, 300, 300, सेम आपका यही टेबल आपका है यहाँ पे, बस उसका नाम क्या है, यहाँ पे एएस है, यहाँ पे इनकम है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट to be discussed, to be noticed, that national income and aggregate supply is same. Okay, अगर मैं कहूँ aggregate supply is equals to national income, so it has been proved that it is fine. Okay, ये चीज़ सही है। Now अब दोनों सेम सेम कैसे आ जाएंगे, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, तो इसको हाफ कर देंगे तो 45। सो 45 डिग्री एंगल इज फॉर द वाई, दैट इज द national aggregate supply, or you can say the national income. Okay, so in this what they have written, drawn from the origin, the line is drawn by taking the same scale on both axes at every point on this 45 degree line, y is equals to c plus s। जहां जहां पे होगा वहां पे यहाँ पे c plus s, that is the income, national income. Okay, now significance of 45 degree line, aggregate supply is obtained by adding consumption and saving schedule। consumption and saving schedule को लेके चला है हमने। the straight line obtained which will originate from point of origin will form 45 angle, thereby establishing the relation of y is equals to c plus s। Okay, then at all points on 45 degree line, income is equal to sum of consumptions and saving। Okay, so it helps under the Keynesian economic analysis, since the two variables, consumption and or aggregate expenditure and income, are measured in the same units. The 45 line has a slope of 1 and it bisects the 90-degree angle formed by two axes. I have already explained you this. Okay, let's move to the next part. But I hope we are going to. Okay, let's discuss here consumption function or propensity to consume. Okay. Now, consumption function or propensities to consume, it means function का meaning क्या होता है? Function means the relationship, okay? The relationship between the consumption and the national income क्या होता है, right? First, we will do here this one. That is consumption function, that is propensity to consume. Consumption expenditure refers to that portion of income which is spent on the purchase of goods and services at a given level of income. So basically definition is consumption function refers to the functional relationship between consumption and national income. So consumption is this, that is the functional relationship between the consumption and the national income. Okay, आपको ये समझ में आ गया? So where C is equals to consumption and Y is the national income, हम कितना कंज्यूम करते हैं, ओके अपने इनकम से, तो दैट इज द रिलेशनशिप जो शो करता है, राइट। कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ अ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। देन इट ऑल्सो शोज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इनकम इन द इकोनॉमी। इट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेम, आपको वही जो टेबल था मैंने शुरू में बताया था, यू विल राइट। ओके, सो इट मीन्स बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू इनकम हाउ मच यू कंज्यूम, दैट इज द प्रोपेंसिटी, मीन्स एबिलिटी, आप कितना कंज्यूम करते हैं। सो सिमिलरली यहाँ इनकम वही सेम रहेगी, 0 and 100 का डिफरेंस टिल 600। कंजम्पशन वही सेम है जो टेबल हमने आपको बताया था, 40 एंड देन 80 80 एड ऑन कर देंगे, 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 80 200, देन 200 प्लस अगेन 80 280, वही सेम टेबल है। ओके, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस, वी नो इट वेरी वेल। कंजम्पशन का रिलेशनशिप बताना है इनकम से, ओके, एंड इनकम हमें पता है 45 डिग्री पे होता है, तो हमने ऐसे 45 डिग्री का बना दिया, राइट। देन कंजम्पशन हमेशा हमें पता है ऑटोनोमस कंजम्पशन के ऊपर रहेगा, सो दिस वी आर गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस। ओके, कंजम्पशन का फंक्शन जहाँ पे द पॉइंट एट विच द नेशनल इनकम, और यू कैन से द कंजम्पशन एंड द सेविंग, और यू कैन से कंजम्पशन intersect, okay, that is known as the break even point, that is the zero saving। यहाँ पे क्या होगा, जीरो सेविंग आ जाएगी। ओके, सो वी विल सी योर 200, 200 क्या एक लेवल है, राइट, 200 इज द लेवल ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। सो नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, राइट, नेशनल इनकम इज हियर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द वाई एक्सिस, राइट। ना इसका इसी डायग्राम को हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्या डिस सेविंग है, बिकॉज हम पुरानी सेविंग से या बोरो करके कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोनोमस ये सी बार आ गया ना, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दिस पोर्शन वेयर कंजम्पशन इज मोर देन द सेविंग, सो दिस इज डिस सेविंग। एंड व्हेन
the income or the saving is more than consumption, that is known as the saving part. Okay, ये डायग्राम आपका इसी तरह एक्सप्लेन होगा, right? And the point at which the income and the consumption is equal, or point at which they intersect each other, that is known as the break even point, right? So starting point of consumption, देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इतने से यहाँ तक में पॉइंट में आपका क्या है, जस्ट वेट टिल हियर, देखो ये तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, बिकॉज हियर y is equals to c. Okay, now here what, y क्या है आपका, लेस देन c है. ओके देखिए y क्या, 0 है, ये 40 है, ये 100 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस सेविंग. ओके, एंड हियर इनकम इज व्हाट, इनकम इज मोर देन, ये इनकम है ना 400 है, और ये आपका कंजम्पशन कितना है 360 है, तो हियर इनकम इज मोर देन, तो ये आपका क्या हो जाएगा कंजम्पशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेविंग हो जाएगी. बच रहा है ना, तो ये पार्ट आपका सेविंग का हो गया, बिकॉज हियर व्हाट, y इज और इनकम इज मोर देन कंजम्पशन. यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन आपका ज्यादा है, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो ये क्या हो गया आपका डिस सेविंग पार्ट हो गया, राइट? और ये क्या है, द पॉइंट एट विच कंजम्पशन एंड इनकम इंटरसेक्ट, दैट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 200 वाला आ गया, दिस 200 बोथ आर सेम. ओके, सेविंग इज जीरो, यहाँ पे क्या है, बिकॉज सेविंग इज जीरो, सेविंग कुछ भी नहीं है, जितना आपकी इनकम थी आपने उतना ही कंज्यूम कर लिया, राइट? आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर नाउ. ये मैंने आपको टेबल के थ्रू भी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन. सिंपल हमें पता है. वन मोर थिंग एक बार फिर मैं बता देती हूँ, डायग्राम बहुत आसान है, फ्री हैंड से आप बना सकते हैं स्केल की हेल्प से. ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में आपको, ये इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. ओके, और टेबल भी आप एक ही चीज बार बार याद करोगे तो उसको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको पता है जो आपका इनकम का कर्व है वो ऐसे आ जाएगा, राइट? सिंपल, सप्लाई की कर्व याद रहती है ना, ऐसे ही कर्व. कंजम्पशन हमारा ये क्या है, ऑटोनोमस है, सी बार मतलब ऑटोनोमस, ये याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि ऑटोनोमस, तो हमेशा आपका कंजम्पशन का कर्व क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा. तो जहाँ पे दोनों ये पॉइंट आपके कट करेंगे, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पे सेविंग आपकी जीरो होगी और इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन. जितना भी इनकम थी हमने सब कंज्यूम कर दिया, राइट? आई होप नाउ इट्स क्वाइट क्लियर. अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए बनाने में, फ्री हैंड से बनाना है. इनकम को हमेशा आप जो है इसमें एक्स एक्सिस पे रखोगे, ठीक है, और यहाँ पे कंजम्पशन या आपका एडी जो भी है वो आएगा, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, दैट इज कंजम्पशन कर्व आपका स्टार्ट्स करता है फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द वाई एक्सिस. दिस इंप्लाइड देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दिख रहा है और ये सी आपका वाई एक्सिस पे. ओके, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व आपने देखा है पॉजिटिव स्लोप, विच इंडिकेट्स that as income increases consumption also increases. ओके, देन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन. इनकम कब होगी आपकी लेस देन कंजम्पशन में, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन. इनकम 0 और 100 पे इनकम थी और कंजम्पशन कितना 40 और 120, दैट मीन्स ये डिस सेविंग का आ रहा है. प्रोपोर्शनेट राइज इन, यहाँ पे था देखो, द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग, डिस सेविंग का आ गया, राइट? ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू वाई दैट इज इनकम, या इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन दैट इज 200, तो ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट. मैंने आपको ऑलरेडी इसको डायग्राम में समझा चुकी हूँ मैं, राइट? तो ये कैसे लिखेंगे आपको ये बस बताया जा रहा है. Break even point occurs corresponding to income of rupees 200 crores. Break even point refers to the point at which consumption is equal to national income. At this point, saving is zero. Remember this, ये MCQs में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? देन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, जहाँ पे इनकम इज मोर देन कंजम्पशन कहाँ पे है, दीज पॉइंट्स आफ्टर 200. देखो यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन इज मोर एंड इनकम इज 3 4 5 6, and here the consumption is 280 360 440 and 520. So when income is more than consumption at the point to the right of point E, income is more than consumption, excess of income leads to saving. तो यहाँ पे आप सेविंग करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अपने इनकम आपकी ज़्यादा है और कंजम्पशन आप कम कर रहे हैं, पैसा आप कम खर्च कर रहे हैं, सेव ज़्यादा कर रहे हैं, राइट?
Now, what else there it states here? This is a Keynesian psychological law of consumption. There is a minimum consumption known as the autonomous consumption. चाहे आपके से कुछ भी पैसा हो चाहे ना हो, आपके पास इनकम हो ना हो, but still you have to make the payment. You have to do get the money for means consume आप करेंगे for the basic needs. Okay, even at zero level of national income because survival needs consumption. Okay, so ये points हैं pointers हैं. As the income increases, consumption also increases. That is a positive relationship है. Okay, income rises at a greater proportion as compared to increase in consumption. Now, do not confuse consumption with the consumption function. Consumption is what? That is the amount of income which is spent on purchase. जो हम परचेज करने के लिए अपनी इनकम से पैसा निकालते हैं कंज्यूम करने के लिए, दैट इज द कंजम्पशन. एंड कंजम्पशन फंक्शन इज बेसिकली व्हाट स्केड्यूल शोइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम, showing the relationship between the consumption and the income. Okay, now in the next video we are going to start types of propensities to consume. Hope you like it and understand it very well. Please do like, share and subscribe. Thank you for watching.